Class 9th students, from yesterday you are reading about the northern plain of India in lesson 2, right? Can you name which are the three major rivers which have formed the northern plain? One of you answer. Indus, Ganga, and Brahmaputra. Indus, Brahmaputra. Indus, Ganga and Brahmaputra. Ganga, Brahmaputra. So you will write completely like the Indus river system, number 1, number 2, the Ganga river system, and number 3, the Brahmaputra river system. Or you can mention basin also, like Indus basin, Ganga basin, or Brahmaputra basin. Because when you are seeing system or basin, that means all the tributaries and their work is also included. What is a doab? Tell me. Land irrigated by two And rivers. between the two Rivers. rivers is known as Doab, Rivers is known as Doab. meaning The land between two rivers is known as doab. For example, river Ganga and Yamuna. Or the land between river Jhelum and Chenab. Lok Sabha and Rajya Sabha. हाँ, अब देखो आज यहाँ से करना है. आज का क्वेश्चन लिख लो. Write about the classification of northern plain according to relief. Write a question, all of you, in your fair copy. Write about the classification of northern plain according to relief. RELIEF. Ma'am, will you repeat from the classification? Yes, classify the northern plain according to its relief. RELIEF. Yes, ma'am. Okay, one of you read this small paragraph before the classification of northern plain. This one. the Ganga plain extends between Ghagar and Tisza river. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. So this is about the extension of the Ganga plain. है ना, गंगा बेसिन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. तो ये मेनली गंगा रिवर के तुरंत बाद एक रिवर है घग्गर रिवर, जो कि ये भी हिमालयन रिवर है. हिमालय से आकर के और गंगा को ज्वाइन करती है. घग्गर रिवर इज ऑल्सो अ बिग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. तो रिवर घग्गर से रिवर तीस्ता तक. रिवर तीस्ता इज इन सिक्किम. यहाँ तक सिक्किम. हाँ, यहाँ तक गंगा प्लेन का ये है, एक्सटेंशन है. And which covers the states of Haryana, Delhi, UP, Bihar and partially Jharkhand and West Bengal. ठीक है ना, इतना तक हो गया. इतने स्टेट्स कवर हो रहे हैं, या रीजन्स कहें, इतने रीजन्स कवर हो रहे हैं. और जो असम में है वो तो दूसरे प्लेन में आ जाता है, वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन. ठीक है ना. तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनली इसी के बारे में कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको किस तरह से हाइट के हिसाब से, है ना, उसके ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से, रिलीफ के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं. नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी प्लेन लैंड, ऑलमोस्ट वेरी प्लेन लैंड, वेरी विथ वेरी नेग्लिजिबल स्लोप, बट there is difference of height when you descend from the foothills of Himalayas. See this, the northern plain. These are the 3, 1, 2 and 3 parallel ranges of Himalayas. The Himadri, the Himachal and the Shivalik. Are you seeing this diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
देखो अब ये देखो, जहाँ हिमालय खत्म हो जा रहा है, हिमालय का लास्ट रेंज जो है शिवालिक, वो जहाँ खत्म हो जा रहा है वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन एकदम यहाँ से लेके, ये एरो मार्क देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नदर्न प्लेन फैला हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस जगह पे गंगा फ्लो कर रही है हिमालय के पैरेलल, ठीक है, हिमालय आर्क शेप में है ना, और उसी के पैरेलल गंगा फ्लो कर रही है, तो शुरुआत में जो प्लेन लैंड है ये बहुत ऊंचा है, इसको भावर कहते हैं। नंबर 1 इज भावर, ठीक है, और ये पेबल्स से बना हुआ है ना, राउंडेड पेबल्स होते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल स्टडेड होते हैं, लगता है जैसे एकदम साइज के हिसाब से सजाया हुआ है। ये रिवर के जो इरोजनल फंक्शन है ना और ट्रांसपोर्टेशनल, उसी के हेल्प से ये होता है कि the pebbles are rounded and studded here according to their size. Biggest are in the upper side, and as you descend the pebbles become smaller and smaller, and then comes the next one. This is known as तराई। ठीक है, और तराई के बाद क्या है, ये जो ऊंचा एरिया है पुराने सॉइल का एरिया है, इसको भांगर कहते हैं, भांगर। ठीक है, तो रॉकी एरिया जो है प्लेन का, जिसको पेबल स्टडेड एरिया कहते हैं, उसको भावर कहते हैं। और भावर के बाद यही रॉकी एरिया बहुत फाइन हो जाता है, फाइन सॉइल में हो जाता है, तो इसको तराई कहते हैं। और तराई के बाद ओल्ड एलिवियल सॉइल है, जिसको कि ये कहते हैं, भांगर कहते हैं। और एकदम रिवर के नजदीक जो सॉइल है उसको क्या कहते हैं वो लोग, खादर। ठीक है ना, तो ये हो गया रिवर का एरिया, देख रहे हो ये क्या है, रिवर का रास्ता है। तो ये दोनों तरफ जो रिवर के बहुत क्लोज जो न्यू सॉइल है उसको कौन सा सॉइल कहते हैं, खादर सॉइल। इधर रिवर के लेफ्ट बैंक पे भी खादर है, रिवर के राइट बैंक पे भी खादर सॉइल है। दिस इज न्यू एलिवियल सॉइल विच इज वेरी वेरी फर्टाइल, है ना। ये इतना फर्टाइल सॉइल होता है कि यहाँ कोई ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, कौन से सॉइल में, न्यू एलिवियल सॉइल में, जिसको क्या कहते हैं, खादर। और अगर ये रिवर का एरिया है, ये जो लो एरिया देख रहे हो ये रिवर का एरिया है, तो रिवर के लेफ्ट बैंक में भी और राइट बैंक में रिवर से सटा हुआ जो है सबसे नजदीक वाला एरिया, उसको खादर सॉइल का एरिया कहते हैं। ये बहुत फर्टाइल सॉइल। और इससे थोड़ी ऊंचाई पे जो है उसको कहते हैं भांगर सॉइल। तो भांगर सॉइल इज ओल्ड एलिवियल। This is not so fertile as the khadar soil, but bhangar soil is also made useful for agriculture by using irrigation system and fertilizer, right? And then according to increasing height, next is a tarai and next is the bhavar. ठीक है ना, ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. होता क्या है, यहाँ से जो रिवर्स के स्ट्रीम डिसेंड करते हैं ना, वो इन रॉक्स के नीचे चले जाते हैं, तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ ऊपर रॉक्स बिल्कुल सूखा दिखेगा, और रिवर्स कहाँ चले जाते हैं, इसके अंदर हो जाते हैं, और फिर री इमर्ज होते हैं कहाँ पर, तो यहाँ तराई में। तो तराई बहुत वाटरी एरिया होता है, बहुत वेट एरिया होता है तराई, और जंगलों से भरा हुआ है ना। तराई इज फुल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो और अभी के समय में ऐसे इसका फॉरेस्ट एरिया बहुत क्लियर करके एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। ठीक है, और भांगर और खादर ये दोनों में तो एग्रीकल्चर ही होता है। तो ये खादर बहुत ज्यादा ही फर्टाइल सॉइल होता है, और भांगर इज लेस फर्टाइल सॉइल। ठीक है, ये समझ गए। इसी से रिलेटेड तुमको एक और डायग्राम हम दिखा देते हैं। और उसके बाद तुम लोग इसको एक बार रीडिंग कर लोगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, Northern Plain PDF here. Are you seeing this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब देखो, अगर इसको देखो, ये हेडिंग क्या लिखा है, द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ। यहाँ माउंटेन का सिंबल दिया हुआ है, ये हिमाद्री रेंज है, उसके बाद क्या है, हिमाचल रेंज है, उसके बाद क्या है, शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज से जैसे ही हम नीचे की तरफ डिसेंड करेंगे, उतरेंगे, तो क्या शुरू हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाता है। तो पहले शुरू में नॉर्दर्न प्लेन ऐसा है, रॉकी एरिया है, जिसको क्या कहते हैं, पेबल स्टडेड एरिया। मतलब पेबल्स बिल्कुल लगता है जैसे अरेंज करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू साइज, बड़े वाले ऊपर, उससे छोटे नीचे, उससे छोटे नीचे, ऐसे करके ये बारीक होते जाते हैं। तो पेबल स्टडेड एरिया जो कि विड्थ में कितना है बताओ, 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, तो ये इसको भाबर कहते हैं। यहाँ पे सारे रिवर्स जो हिमालयन रीजन से आ रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम हो जाते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं, और दीज स्ट्रीम्स रीअपीयर इन द तराई रीजन। दूसरा रीजन क्या हो गया, तराई, है ना। तराई फाइन एलिवियल सॉइल का होता है, और यहाँ वाटर भी बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब मार्शी एरिया होता है, बिल्कुल वेट एरिया होता है, और इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे। लेकिन इंडिया में तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि तराई रीजन के फॉरेस्ट को क्लियर करते करते सारा एग्रीकल्चरल लैंड में लगभग कंप्लीट हो गया है। और अभी भी कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब हैं, तुम लोग देखते हो ना, इस तरफ है दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो सब इसी तराई रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, ये हिमालय के कुछ हिस्से में ये हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे इधर की तरफ बढ़ोगे तो वही चीज है ना। उसके बाद देखो, ये जो ब्राउन से ये जो शेड किया हुआ है, ये हो गया भांगर, दिस इज ओल्ड एलिवियल सॉइल, और ब्राउन से ही जो डॉट किया हुआ है जो रिवर के आसपास है, उसको कहते हैं खादर सॉइल। ठीक है, तो खादर सॉइल रिवर के दोनों तरफ है, और बांगर सॉइल रिवर के दोनों तरफ है, खादर और बांगर दोनों तरफ है। अब कंटिन्यूटी में नाम बताओ तो, कि अकॉर्डिंग टू रिलीफ, what is the classification of northern plain? Number 1, भाबर number 2, भाबर, तराई तराई number 3, भांगर, bhangar, and भांगर number 4, खादर खादर which is the newest soil खादर खादर and which is the खादर fertile soil. खादर खादर is also the most fertile soil. ठीक है ना। अब इधर देखें, इधर क्या है इंडिया में, ये पेनिनसुलर प्लेटो का रीजन है इधर, तो यहाँ से भी बहुत सारे रिवर आते हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, रिवर सोन, ये सब आके गंगा को ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना। और चंबल, बेतवा, सिंध ये सब पहले रिवर यमुना को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से एक अगर ब्लू पैरेलल लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर दें तो ये कौन सी रिवर हो जाएगी, रिवर यमुना, है ना। तो रिवर यमुना को इधर से सेंट्रल हाईलैंड से आकर के रिवर ज्वाइन करते हैं, और यमुना का जॉइंट वाटर यहाँ इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं अभी, तो उसमें वो गंगा के साथ उसका कन्फ्लुएंस हो जाता है। कन्फ्लुएंस मतलब एक रिवर दूसरे रिवर में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये रिवर गंगा यहाँ से बाइफर्केट हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर हुगली कहते हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से होके जाता है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जा रहा है। लेकिन गंगा का जो मेन ब्रांच है वो इधर बांग्लादेश में आ जाता है, और इधर ईस्ट की तरफ से ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, और दोनों का यहाँ कन्फ्लुएंस हो जाता है, और आगे बढ़ के ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है। When the main stream of the river divides itself into numerous channels, it is known as distributary. ठीक है ना। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का अंतर कल लिखा दिए थे, पता है ना किसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं? यस यस मैम Yes, ma'am. When the smaller river or streams of river come and join with the main stream of the river or the bigger river, they are known as tributaries. For example, Yamuna is a tributary, Ghagra, Gandak, Koshi, all these are tributaries, right? River Son is also a tributary to river Ganga from the right bank of Ganga. Okay, so these are the tributary rivers, and when the main stream in its lower course divides itself into numerous channels, why this happens? This happens due to the flat land. Deposition of silt. Deposition of silt, SILT, silt. And in between the branches of the river, there is deposition of silt.
and the river has no load carrying capacity. The speed of the river decreases due to the flat land and deposition of silt, and therefore it divides itself into numerous distributaries. Okay, have you understood all this? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो इस आंसर को तुम लोग ऐसे लिखना कि द नदर्न प्लेन इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिलीफ. ठीक है, नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 बांगर एंड नंबर 4 खादर. और सबके बारे में दो दो लाइन एक्सप्लेन करना है. ठीक है ना, वही अभी किताब में देख लो. हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ही दिया. ये क्या है, भाबर क्या है, पेबल स्टडेड एरिया है. और यहाँ पे रिवर्स क्या होते हैं, डाउन स्ट्रीम हो जाते हैं, मतलब रॉक्स के अंदर बहते हैं, है ना, ऊपर से सूखा दिखेगा. और इसका विड्थ लिख देना 8 to 16 किलोमीटर्स. फिर तराई में फाइन सॉइल है, और यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर री इमर्ज माने बाहर निकल आते हैं. तो ये बहुत वाटरी एरिया है, ये मार्शी एरिया है, फुल ऑफ फॉरेस्ट which is converted into agricultural land. And then comes the old alluvial soil, है ना, which is known as भांगर. और भांगर में भी एग्रीकल्चर होता है आपको इरिगेशन के हेल्प से, फर्टिलाइजर के हेल्प से, है ना. इंडिया, बिहार में या यूपी में मेज का बहुत अच्छा एरिया है, और सारे क्रॉप्स भी होते हैं. और खादर तो सबसे न्यू सॉइल है, यहाँ पैडी क्रॉप ज्यादा लगाते हैं खादर में, है ना. इट इज वेरी क्लोज टू द रिवर एंड the soil is renewed every year, है ना. हमेशा फ्लड आता है हर साल, और फ्लड जो है जब वापस लौटता है फ्लड का पानी, तो वहां पे न्यू एलिवेल सॉइल छोड़ जाता है. सो दिस सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर. खादर सॉइल इज डिपॉजिटेड एवरी ईयर. ठीक है ना. तो ये बस चारों के बारे में ऐसे दो दो लाइन लिख देंगे. ठीक है ना. तो तुम्हारा यही होमवर्क है, अपने से लिख लोगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि Yes, ma'am. उसको हम लोग लिखाएंगे नहीं, उसे तुम खुद से लिख लेना. ठीक है. Now you start reading from here, the northern plains. जो अभी आंसर बताया ना, उसी की रीडिंग कर लो. The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabar. All the streams disappear in this Bhabar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in this region. नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो. अभी तक तुम लोग 2 पढ़े, भाबर और तराई. अब बाकी 2 नेक्स्ट पैराग्राफ में. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the flood plains of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as Kankar. देखो भाबर, ये जो है ना, जो लेस फर्टाइल सॉइल है, ओल्ड एलिवियल सॉइल है, जिसको भांगर कहते हैं, उसी में क्या है, कैल्केरियस डिपॉजिट है, जिसे लोकली क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं. The newer younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में आता है. क्लासिफाई द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ. तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करके और सबके बारे में कम से कम 2-2 लाइन लिखना है.
ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क, यू विल डू दिस। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अच्छे से समझ गए हो, अब इसको लिख लेना, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा शुरू कर रहे हैं, थर्ड, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो वो क्या है बताओ। Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. हाँ, तो पेनिनसुलर प्लेटो को क्या कहते हैं, टेबल लैंड कहते हैं। हाँ, टेबल लैंड क्यों कहते हैं कि जैसे टेबल हाई होता है ना, जमीन से ऊंचा है, ऊपर है, लेकिन उसका टॉप कैसा है, फ्लैट लैंड है। तो इसीलिए पेनिनसुलर ये प्लेटो रीजन को भी टेबल लैंड से कंपेयर किया, टेबल से कंपेयर करके उसका नाम क्या रखा गया है, टेबल लैंड। That means it is higher than the surface, but the top is flat. So it is a tableland. ये कैसे बना है बताओ, composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. यहाँ rocks के टाइप दिए हुए हैं कि कौन कौन से रॉक से ये बना है, old crystalline, igneous and metamorphic rock. रॉक्स के 3 टाइप्स लिखे थे ना तुम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are 3 types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic. Metamorphic rocks. हाँ, तो पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हाउ द पेनिनसुलर प्लेटोज आर फॉर्म्ड। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, तुम लोग को फर्स्ट पहले वाले क्लास में ही बताया गया था, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया गया था, जिसमें प्लेट्स, मेजर प्लेट्स के बारे में बताया गया था, है ना, याद है ना। सबसे पहले Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे तो उसको क्या कहा जाता था, जो Pangea. Ma'am, Pancha. पैंजिया जब 2 पार्ट्स में, 2 प्लेट में डिवाइडेड हुआ, तो नॉर्दर्न प्लेट को क्या कहते थे, Angara. Angara land. Angara. Russia. हाँ, और सदर्न प्लेट को गोंडवाना लैंड कहते थे। Gondwana land. गोंडवाना का फिर से रेफरेंस आया क्योंकि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना, वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, एक ओल्डेस्ट लैंड मास का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसलिए क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो इज वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड, ठीक है। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। ये प्लेटो रीजन इतना पुराना है, इतना ओल्ड है कि यहाँ पर के जितने भी माउंटेन्स थे वो इरोजन होते होते लो हाइट के हो गए हैं, ठीक है। तो माउंटेन जब लो हाइट का होगा तो माउंटेन के नीचे जो वैली है वो भी फिलअप होने लगता है। हाइट वाले पोर्शन का क्या होता है, इरोजन होता है, और जो लो लाइंग एरिया होता है उसका क्या होता है, उसमें फिलिंग होता है, वो भरने लगता है। तो एंटीक्लाइन और जियोसिंक्लाइन पढ़े थे ना तुम लोग। एंटीक्लाइन मतलब हायर पार्ट और जियोसिंक्लाइन मतलब लोअर पार्ट। तो हायर पार्ट अगर इरोडेड होता है तो लोअर पार्ट का फिलिंग होता है, वहां का इरोडेड मटेरियल लोअर पार्ट में जमा होता है। इसीलिए पेनिनसुलर प्लेटो में हिल्स कैसे हैं, राउंडेड हैं, और वैलीज कैसे हैं, शैलो है, मतलब भरे हुए हैं वैलीज, वो बहुत गहरे नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंस ऑफ हाइट कम हो गया, यहाँ पे हिल्स और वैली का हाइट का डिफरेंस घट गया, रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन दोनों चल रहा है। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो, ठीक है। अब तुम अपने मैप में आ जाओ, मैप से देखो, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटो। ये नदर्न प्लेन के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है पेनिनसुलर प्लेटो। देख लो, एक लगभग एक ट्रायंगुलर शेप में ये फैला हुआ है। इसका बेस ऐसे नॉर्थ में है और एपेक्स ऐसे साउथ में, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ है, और ये जो बीच में डार्क कलर से जो दिखाया है ना, यही माउंटेन के साथ, ये जो डार्क थिक लाइन है वो माउंटेन को शो करते हैं, और बाकी ये जो डार्क शेड है वो पूरे प्लेटो रीजन को शो करता है। मतलब प्लेटो के साथ साथ इसके माउंटेन रेंजेस भी हैं, है ना। सारे माउंटेन रेंज पढ़ो तो यहाँ क्या लिखा है,
Aravali Range. Aravali range. उसके बाद ये क्या है? विंध्या रेंज, Vindhya range. पूरा साउथ में बढ़े तो क्या है? महादेव रेंज, Satpura range. Pura Pura range. और उसके साउथ में महादेव हिल्स, Mahadev. और ये Mahadev Hills. और यहाँ 2-3 हिल्स के नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो वो एटलस में देखोगे ना तो तुमको यहाँ मिलेगा तापी, महादेव हिल्स के बाद में मिलेगा मैकल हिल्स, है ना, कैमूर हिल्स, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। जहाँ यहाँ पे उतना डिटेल में नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तुम इसको एटलस में जरूर देखना। ये महादेव हिल्स, मैकल हिल्स, कैमूर हिल्स, ये सब देखना। फिर वेस्टर्न एज मतलब किनारा। नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न एज पे कौन सा माउंटेन है ये? इसका क्या नाम है? Nilgiri Hills. Western. नीलगिरी हिल्स, नहीं, ये पूरा Nilgiri Hills. नाम है वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक है, एक साथ क्या कहते हैं इसको? वेस्टर्न घाट माउंटेन। Western Hot Mountain. हाँ, Western नीलगिरी Ghat Mountain. यहाँ पर है। नीलगिरी यहाँ जहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर है ना, जंक्शन है, ट्राई जंक्शन, वहां पर नीलगिरी हिल्स है। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, ऐसे। Yes, ma'am. समझ गए? इसको तुम देखना है एटलस में, यहाँ इसका अलग से लाइन नहीं ड्रॉ किया हुआ है। और ये जो ईस्टर्न एज बनाया हुआ है, एज मतलब किनारा, प्लेटो का किनारा वेस्टर्न घाट माउंटेन से बनता है, और इधर ईस्ट किनारा जो है, ईस्टर्न एज, Eastern Ghat Mountain. माउंटेन से बनता है। ठीक है, तब तुम सारे माउंटेन्स के नाम जान लिए, अरावली माउंटेन, विंध्या माउंटेन, सतपुरा, महादेव, मैकल, फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन और ईस्टर्न घाट माउंटेन। इतना जान गए? अब क्या है कि इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए ना पूरे प्लेटो रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये बीच में कौन सा रिवर है? देखो, विंध्या और सतपुरा के बीच में ये कौन सा रिवर है? Narmada नर्मदा। River. तो ठीक है, नर्मदा रिवर से नॉर्थ की तरफ, मतलब विंध्या से लेके अरावली तक, और फिर इधर ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटो तक, इस पोर्शन को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। विंध्या इसका सदर्न बॉर्डर बनाता है, और वेस्टर्न मार्जिन अरावली माउंटेन बनाता है, और ईस्ट का मार्जिन ये छोटा नागपुर प्लेटो से बनता है, जो कि पूरा झारखंड है। ठीक है ना, तो इस पोर्शन को अगर हम अलग कर दे तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप किधर है? तो स्लोप जो है ना वो रिवर से पता चलता है, रिवर के फ्लो से। तो यहाँ के रिवर्स जो है ना, जैसे ये रिवर चंबल, रिवर बेतवा, सिंध, केन और सोन, ये सब रिवर जो है ना ये नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहे हैं, नदर प्लेन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, और ये जो सतपुरा रेंज है, यहाँ से अगर हम साउथ की तरफ बढ़ें तो इस रीजन को कहते हैं डेक्कन प्लेटो। इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटो, और इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटो। Deccan Plateau. सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो को मिला के कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, अब यहाँ देखो, सेंट्रल हाईलैंड का डिटेल हम लोग कर रहे थे। तो सेंट्रल हाईलैंड का वेस्टर्न मार्जिन अरावली से बन रहा है, सदर्न मार्जिन विंध्या रेंज से बन रहा है, और रिवर नर्मदा विंध्या के साउथ में है, और इन दोनों माउंटेन के बीच में एक बड़ा प्लेटो रीजन है, जिसको क्या बोलते हैं? नाम बताओ देख के। Malwa Malwa Plateau. हाँ, Malwa Plateau. हाँ, तो मालवा प्लेटो इज द बिगेस्ट प्लेटो इन द सेंट्रल हाईलैंड। सबसे बड़ा प्लेटो मालवा प्लेटो है, एग्जाम में दिखाने के लिए आता है। तो जब भी एग्जाम में दिखाने के लिए आएगा ना, तो तुम अरावली से लेकर के विंध्या तक के बीच का एरिया ऐसे डिमार्केट कर लोगे, ओवल, है ना, नॉर्दर्न प्लेन को छोड़ते हुए, और तब इसको इसके अंदर लिख दोगे मालवा प्लेटो। ठीक है, अब मालवा प्लेटो के ईस्ट में रहेंगे तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का प्लेटो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, यूपी का सदर्न पार्ट और एमपी का नॉर्दर्न पार्ट मिला के ये बुंदेलखंड बनता है, फिर बघेलखंड, और फिर और एक्सट्रीम ईस्ट में चले गए तो क्या बन गया? छोटा नागपुर प्लेटो बन गया। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन लिखो, टाइम खत्म हो रहा है। राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। Write about the formation of
the peninsular plateau. तो यहाँ शुरू से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, हिल्स तक, ये मेनली ये पार्ट है जो तुम्हारे आंसर का हिस्सा है, ठीक है ना, और इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. Repeat the question. Write Write about the formation of the peninsular plateau. ठीक है. और what are the two divisions? Next question लिखो. What are the two divisions of the peninsular plateau? What are the two divisions of the peninsular plateau? Describe the central highland. उसी में लिखो describe the central highland. दोनों का नाम लिख देंगे और एक को describe कर देंगे, पहले वाले को. और डिस्क्राइब करने के लिए ना तुम मैप में देख करके जैसे जैसे हम बताए हैं वो तुम अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो. कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से देख करके ही लिखें. मैम डिस्क्राइब के बाद क्या था? डिस्क्राइब द सेंट्रल हाईलैंड. तुम बताओ अब ओरली आंसर करो. व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो? Central Highlands and Central Deccan Plateau. Highland and Deccan Plateau. Central Highland and Deccan Plateau. The Central Highland and the Deccan Plateau. Name some of the rivers of the Central Highland which are flowing northward. नॉर्थ की तरफ बहने वाले रिवर का नाम बताओ. Narmada River. चंबल, Soul. नहीं, नर्मदा मत सोन। बोलना यहाँ पे. नर्मदा तो मेन रिवर है जरूर, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि द रिवर्स विच आर फ्लोइंग नॉर्थवर्ड. चंबल, सोन, Chambal, Son, सिंध, बेतवा. Chambal, Sen, Betwa, and Ken. हाँ, यहाँ पे एक सोन भी जोड़ लेना, है ना. यहाँ पे रिवर्स के नाम लिखे हुए हैं. चंबल, द सिंध, द बेतवा, केन, है ना, द, ठीक है. And सोन. और हाँ, और बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में, ये भी प्लेटो रीजन है. इसको लोकली क्या नाम दिया गया है? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. और ईस्ट में बढ़ेंगे तो कौन सा प्लेटो है? छोटा नागपुर प्लेटो. छोटा नागपुर। तो लगातार नागपुर प्लेटो. वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए प्लेटो का नाम बोले तो क्या क्या है? मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर. छोटा नागपुर। हाँ, नेम द 4 plateaus of the Central Highland. मालवा, Malwa, Bundelkhand, Plateau, Baghelkhand Chota Plateau, Nagpur. and Chota Nagpur Plateau. हाँ, very good. सबसे पहले वेस्ट में क्या है? मालवा प्लेटो, जो कि सबसे बड़ा है. और कौन से 2 माउंटेन के बीच में है मालवा प्लेटो बताओ? अरावली, Aravalli Range and Vindhya Range. Very good. Now, Malwa Plateau lies between Aravalli and the Vindhya Range. And towards the other plateaus are Bundelkhand, Baghelkhand and the Chota Nagpur Plateau. छोटा नागपुर। पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो एक अलग स्टेट बन गया है. वो क्या है? झारखंड। Jharkhand. और छोटा नागपुर प्लेटो से बड़ी रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है वो है रिवर दामोदर. नॉर्थ की तरफ फ्लो करने वाली ये सब रिवर हो गई, है ना, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी. और ईस्टवर्ड मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली रिवर का क्या नाम है? रिवर दामोदर. दामोदर। आज अपने घर में बैठे बैठे एटलस खोलो और ये सारे रिवर्स का लोकेशन देखो. चंबल, सिंध, बेतवा, केन और रिवर दामोदर को भी देखो कि वो किस तरफ फ्लो कर रहा है. और भी कौन कौन से रिवर हैं जो यहाँ से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, है ना, जैसे रिवर स्वर्ण रेखा देखना. चलो अब टाइम खत्म हो रहा है. और कुछ पूछो तब तक, 1 मिनट आधा मिनट जो भी बचा है. Why Peninsular Plateau are very strong? Because it Because is it one is of the the part of Gondwana land and it is oldest the oldest land. land. Because it is the part of the Gondwana land, which is the oldest, which is an example of oldest landmass
Therefore, it is very strong and stable at its place. It is not in the risk of earthquake, है ना? Earthquake बहुत rare होता है यहाँ पे. Earthquake कहीं पे होता भी है तो वो जहाँ पे fault line है ना वहाँ पे होता है. Yes, ma'am. Folding faulting का हम तुम्हें एक